जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today is the fourth lecture of Project Management and Engineering Economics. The topic is the risk concentration in project selection. How much risk you have to bear for the new project. The father or mother request you take this money and go to the bazaar and bring the following items or the written items on the paper from the bazaar. You decide and go to the bazaar and take action which one you will buy the first. मेरी आवाज आ रही बच्चों? जी सर, आ रही है। जी सर। ठीक है। And you decide I will go first in this shop and then I will go to this shop, then this shop and then this shop. And you just started your traveling by motorcycle to buy different things according to the list of items given by your father or mother. You started your journey and start your motorcycle, but it is not being started. एक किक मारी, दूसरी किक मारी, तीसरी मारी, नहीं स्टार्ट हो रही. You just check your tanky, the petrol is available at not or not. You said your father, अबू इसके अंदर तो पेट्रोल नहीं है, there is no petrol in my motorcycle. अब्बा जी दो बातें सुनाएगा. So the worst trick you face, there is no petrol in your motorcycle, but you have at the time of discussion, the father saying, bring these items from the bazaar. Nobody considered to the risk. The project has started and you are just ready to go the bazaar, but there is no petrol in the motorcycle. Similarly, if there is a petrol in motorcycle, there is a still risk available during driving. You have to face about the out of order of the motorcycle or puncture of your tire. So the lot of risk is still available in the project when you face or when you start any kind of project. कहने का मतलब ये है हर काम में रिस्क है. So as a good engineer, as a good mechanical engineer, as a good project engineer, you must consider a different risk during the project. So the today topic is risk consideration. You should consider. अगर नहीं भी कोई रिस्क हो तो you should risk consider, and when you write the feasibility report in the first phase, you will write different risks on that feasible project report. तो रिस्क को कंसिडर करना बहुत जरूरी है. It is not a necessary you will say I will start this project on this date and I will finish
this project on this date. बारिशें हो गई शुरू, प्रोजेक्ट ऐसी जगह बन रहा है, कुछ सैलाब आ गया, प्रोजेक्ट ऐसी जगह बन रहा है कि वर्कर जो है वो हार्वेस्टिंग के दौरान अवेलेबल नहीं है। एक बात याद रखें, हमारे मुल्क में बिकॉज वी आर बिलोंग टू एग्रीकल्चर कंट्री, मैंने अपनी 15 ईयर इंडस्ट्रियल लाइफ में ये देखा है कि जब भी ये हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है जिसमें गंदम की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग मीन कि गंदम की कटाई, आपकी लेबर सारी भाग जाती है। बिकॉज खेतों में विद इन द 1 मंथ, 15 अप्रैल से लेकर या 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक या 15 मई तक पाकिस्तान के तमाम किसानों ने हार्वेस्टिंग करनी, कटिंग करनी है। तो सारी और वो अगर लेट कर देंगे या बारिशें शुरू हो जाएंगी तो दैट विल बी वेरी डिस्ट्रॉय फॉर देम कि जी कोई चीज़ ना बचे। तो हमारे मुल्क में जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर लेबर काम कर रही होती है वो ऑलमोस्ट 80% अवेलेबल नहीं होती, वो सब खेतों की तरफ चले जाते हैं बिकॉज किसान या ज़मींदार पे टू मच, उनको बहुत अच्छा पे करते हैं। सपोज इंडस्ट्री के अंदर आजकल 18,000 रुपये सैलरी है एक सिंपल वर्कर की, 18,000 रुपीज़ दे आर पेइंग, इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर पेइंग अराउंड 15 to 18,000 पे। इसको अगर पर डे के हिसाब से निकालें तो ऑलमोस्ट 500-600 रुपीज़ बनते हैं। तो जितनी भी ये क्लरिकल स्टाफ लेबर होती है, किसान और जिम्मेदार उसको 2,000 रुपये देता है पर डे का, एक महीने का, तो वो 60,000 रुपये बन जाता है। लेबर आपकी सारी बार भाग जाती है कि हमें तो बाहर से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, हम इंडस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे। तो मैंने अपनी 15 ईयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ अप्रैल और मई, स्टार्टिंग मई, लेबर की शॉर्टेज देखी है पाकिस्तान में। और बिकॉज वी हैव ये जो है एग्रीकल्चर कंट्री, वी आर बिलोंग टू एग्रीकल्चर कंट्री, वी आर लिविंग इन एग्रीकल्चर कंट्री, तो दिस इज द वेरी बिगेस्ट रिस्क you have to consider if you start a project in February or March and it would be complete in July or August. So you have to face in April or the first 2 weeks of the May the shortage of labor. So there are a lot of risk available in your project. तो लेबर ही सारी की सारी नहीं आई, यूनियन ने हड़ताल कर दी। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी कि जी मोटरसाइकिल ही नहीं स्टार्ट हो रही, रास्ते में मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, रास्ते में मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया। सो ए लॉट ऑफ रिस्क अवेलेबल इन एनी काइंड ऑफ वर्क। सो व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट यू हैव टू कंसीडर रिस्क कि कहाँ का रिस्क अवेलेबल है। बिजली नहीं आ सकती, बिजली की शॉर्टेज हो सकती है, वर्कर की शॉर्टेज हो सकती है। सिविल इंजीनियर की अक्सर फेसबुक में आप लोगों ने मूवी देखी होगी कि वो एक शटरिंग लगी हुई थी और पूरी की पूरी शटरिंग नीचे गिर जाती है। किसी ने देखी है आपकी मूवी? किसी ने? फेसबुक में मूवी बड़ी मशहूर हुई थी, ये लेंटर डलने वाला था और शटरिंग हो रही थी, 2 हफ्ते लग गए शटरिंग है पूरा प्लांट की, और वो कहीं किसी एक की नाअहली की वजह से पूरी शटरिंग नीचे गिर गई। किसी ने नहीं देखी? देखिए सर। तो अब वो शटरिंग, ये तो सर जी वैसे भी है जी ये तो सर जी आम भी देखने में मिल जाता है शटरिंग गिर जाती है। जी। पाकिस्तान है ना, तो बात है, बात रिस्क की बात हो रही है। दिस इज अ रिस्क अवेलेबल इन एनी काइंड ऑफ वर्क। आप ट्रेन में जा रहे हैं और
हम कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत से आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाए। एरोप्लेन पर बैठते हैं तो कहते हैं जी अल्लाह ताला आपको खैरियत से पहुंचाए, बिकॉज देयर इज ए रिस्क कि जी जहाज 100% चांसेस नहीं होते कि जी हाँ जहाज ने या ट्रेन ने वहाँ पहुंचना है और टाइम पर पहुंचना है। रास्ते में ट्रेन भी खराब हो सकती है, रास्ते में ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो देयर इज ए रिस्क in any kind of project still available. So, as a good engineer, as a good mechanical engineer, as a good project engineer, you will write all kind of risk in your feasible report. कि जी, I will try my best to complete this project on the 31st of May, but there is a risk, so it would be 10 to 15 days late. यानी 10 से 15 दिन लेट हो सकता है बिकॉज ड्यू टू रिस्क इज अवेलेबल. सो these are the main consideration of the today's lecture. So considering risk management during the project selection, this is the first slide. The project selection is usually मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि स्लाइड्स भेजें. मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि स्लाइड्स दे दें, बिकॉज आप इसकी प्रिंट स्क्रीन कर लें, आप इसको एक दफ़ा यूट्यूब फिर खोलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो चीज़ें ज़हन में बैठ जाएंगी. जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो यूट्यूब में जाके लेक्चर सुने और फिर उसमें स्क्रीन सेव करें. कुछ काम मैं कर रहा हूँ, कुछ आप भी कर लें. कुछ करेंगे तो चीज़ें ज़हन में रहेंगी. The project selection is usually based on the several decisions making points such as the project potential for profitability and its life cycle cost. Obviously, आप you recommended कि जी I would complete this project in the 5 lakh rupees, but the risk is available, the cost can be affected because of risk available. लेबर आई थी, सारी की सारी मटेरियल नहीं पहुंचा, लेबर लेबर की जो वेजेस है वो उस दिन की पड़ गई, बट काम नहीं स्टार्ट हो सका. तो कॉस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर रिस्क. आपने 95% काम ख़त्म कर लिया और बाद में रिक्वेस्ट भेज दी, आई नीड मोर मनी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज कॉस्ट ऊपर चली गई है. तो यू हैव टू वेरी सॉलिड रीज़न व्हाई द कॉस्ट इज गोइंग अप इन दिस प्रोजेक्ट. जी मैंने लेबर आई थी तो मटेरियल लेट पहुंचा, वो कहेंगे अच्छे प्रोजेक्ट इंजीनियर हो, जब मटेरियल नहीं आया था तो फिर लेबर को क्यों बुलाया. बहरहाल तो प्रोजेक्ट का पोटेंशियल जो है मेन वो कॉस्ट है, और अगर कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी तो मालिक को प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी. तो इसलिए आपने जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें कॉस्ट जो है वो मेन पोटेंशियल चीज़ होती है और उसकी डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिटेबिलिटी से. ये जो काम करने जा रहे हैं इसका क्या फ़ायदा होगा अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी. The another key decision making point that is usually left out is the level of risk. अब बाकी जितने भी आपके डिसीजन मेकिंग है प्रोजेक्ट के दौरान, असल में होता ऐसे है कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे आप देखेंगे अब्बू ने कहा जाओ सौदा ले आओ, आपने कहा अच्छा बाबा मैं जाता हूँ. मामा ने कहा अभी 2 बजे मेहमान आने हैं, सौदा ले आओ जाके. आपने कहा अच्छा बाबा मैं ज़रा काम कर रहा हूँ, मैं ज़रा बस जाता हूँ आधे घंटे तक. अब मैक्सिमम लेट आपने कर दिया अपने फैसले की वजह से, आप नहीं गए. जब आप निकलने लगे तो बारिश शुरू हो गई, टायर पंचर हो गया, लेट हो गए. आप अगर पहले चले जाते फैसला कर लेते तो शायद बारिश को फेस ना करना पड़ता, शायद मोटरसाइकिल भी ठीक रहती और टाइम पर खाना पक जाता. तो
डिसीजन मेकिंग जो है ना, मेन पॉइंट है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, आपका रिस्क कम हो जाए। और कुछ ऐसे डिसीजन गलत हो जाते हैं ड्यू टू नॉन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, जिसकी वजह से आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। इस लाइन का ये मतलब है। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट नीड्स टू बी कंडक्टेड। ठीक है जी, जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, मैंने आपको कहा आप रिस्क मैनेजमेंट को कंसीडर ज़रूर करें, उसको कंडक्ट करें कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है और मैंने इस रिस्क से कैसे निकलना है और इसको कैसे फेस करना है। The two basic types of models in the selection of projects, that is numeric and non-numeric। अब कुछ चीज़ें न्यूमेरिकली होती हैं कि जी ड्यू टू माई दिस डिसीजन रिस्क डबल हो जाएगा। अगर मैं ये काम ज़्यादा से ज़्यादा लेट करूँगा अपने डिसीजन की वजह से, तो मुझ पर डबल बर्डन आ जाएगा। और अगर मैं ये डिसीजन पहले कर लूँ तो मेरा डिसीजन जो है मुझ पर बर्डन नहीं होगा, डबल डिजिट्स में नहीं आएगा। लेबर अगर आती है फुल फ्लेज, मटेरियल भी आ जाता है, तो मेरी कॉस्ट सेव है। फिर आप न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं। नॉन न्यूमेरिक डायरेक्टली रिलेशन होता है, जिसमें सिर्फ आप लोगों से गाइडलाइन आप देते हैं कि जी काम ठीक करना है। जैसे शटरिंग का लफ्ज़ यूज़ हुआ था, भाई शटरिंग ठीक करनी है, सुपरवाइज़र को कहा कि जी अगर शटरिंग ना ठीक हुई तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नॉन न्यूमेरिक्स कहलाती हैं। अब दो क्रिटिकल फैक्ट्स हैं। मॉडल्स डू नॉट मेक डिसीजंस, पीपल डू। The all models are only partial representations of reality. Try to understand what I am saying. The models do not make decisions. कुछ काम ऐसे आप कर देते हैं कि आपको खुद ब खुद फैसले करने की जरूरत पड़ जाती है, यानी लोगों को उस मॉडल के उस फैसले करने पड़ते हैं। आप ऐसा सिस्टम प्रोजेक्ट में बनाएं कि आपको फैसले ना करने पड़े, बजाय कि लोग फैसले करें। क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट जितनी फैसलों के साथ होगी उतना ही रिस्क बढ़ेगा। ऑब्वियसली जिसने फैसला करना था वो ही नहीं आया, जिसने फैसला करना था वो बीमार पड़ गया। तो जितना भी आप अपने प्रोजेक्ट का जो मॉडल क्रिएट करें शुरू में, वो आप डिसीजन मेकिंग जो बनाए उस उसका फैसला आप मॉडल एक ऐसा अच्छा डिज़ाइन करें जिसमें डिसीजन मेकिंग उस मॉडल में ही हो, बजाय कि लोग करें। तो ये बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होता है। ऑल मॉडल्स आर नॉट पार्शियली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। बट ये भी ज़हन में रखें कि आपके तमाम मॉडल जो आप किसी को कंसिडर करते हैं कि जी मेरे लिए ये मॉडल बहुत अच्छा है और मैं इस मॉडल को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा, तो कई दफ़ा वो मॉडल रियलिटी बेस नहीं होते। आप उन मॉडल्स को रियलिटी बेस पर बना के काम शुरू करते हैं और आप 1 2 3 4 पता नहीं कितनी दफ़ा आप डिस्टर्ब होते हैं और रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो मॉडल्स अगर अच्छे मिल जाएं, वो कई रियलिटी बेस भी नहीं होते जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जितने भी आप प्रोजेक्ट कंसीडर करें, मॉडल्स जो आपने, जी मैंने कराची में एक मॉडल देखा है या मैंने एक इस्लामाबाद में मॉडल देखा है, लोगों ने बनाया हुआ है, मैं भी उसी किस्म का प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। बाद में पता चलता है जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आप कहते हैं यार ये अच्छा रिस्क मुझे पता चला है, मुझे तो पहले ये पता ही नहीं था ये काम होना है। तो आप कहते हैं जी मॉडल रियलिटी बेस्ड नहीं था। तो ये दो पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, कंसीडर करने चाहिए। रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होती है 50-50, होना है या नहीं होना। एक रिस्क तो है ना, 100% होगा या नहीं होगा। अब वो उसके 50-50 चांसेस होते हैं। अनसर्टेनिटी, इट विल हैपन और नॉट हैपन। Risk, when the decision maker knows the probability of each and every state of nature and thus each and every outcome। आप फैसला करते हैं
और प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो हो जाएगा या नहीं होगा, कि आप कुदरत पर डिपेंडेंट है। काम शुरू हो गया, प्लांट शुरू हो गया, 4 दिन के लिए बारिश ही नहीं खत्म हो रही, ठीक है जी। आप जो नेचर है, द स्टेट, एवरी स्टेट ऑफ द नेचर, ये लफ्ज लिखा हुआ है, जो नेचर है वो अब आपका साथ नहीं, कुदरती तौर पर आपको अल्लाह ताला हैवी हो गया और आपका काम डिस्टर्ब हो गया। तो जितने भी आपके आउटकम्स हैं, अब आपका आउटकम 4 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ ड्यू टू स्टेट ऑफ नेचर, तो रिस्क इन्वॉल्व हो गया। बट द अनसर्टेनिटी इज द व्हेन ए डिसीजन मेकर हैज इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कंप्लीट। अब इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं दी उसने, ठीक है जी। मामा ने कहा गोश्त ले आओ, आपको भी नहीं याद रहा, मामा को भी नहीं याद रहा, ओह 1.5 किलो लाना था, 2 किलो लाना था, 3 किलो लाना था, एंड यू विल कॉल हर। अगर उनके पास मोबाइल होगा, आप कॉल करके सुन लेंगे, वो कॉल ही नहीं सुन रही। आपने 5 मिनट बाद फिर कॉल की, मामा मैं आपको बार बार कॉल कर रहा था, आपने कॉल क्यों नहीं उठाई, मुझे पता ही नहीं था गोश्त कितना लाना है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, इस तरह इंडस्ट्री में भी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, अगर इंफॉर्मेशन पूरी ना मिले तो अनसर्टेनिटी हो गई। रिस्क तो है नहीं, आपकी अपने फैसलों की वजह से अनसर्टेनिटी हो गई कि वो प्रोजेक्ट का वो हिस्सा जिसमें आपने एक डिसीजन करना था कि मुझे गोश्त कितना खरीदना है, पता ही नहीं चला। एंड दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता, रिस्क नेचर पर डिपेंड करता है, कुदरत ने ही नहीं आपका साथ दिया। बट अनसर्टेनिटी इज हैपेंड बाय योर डिसीजंस। ये दो चीजों में फर्क याद रखना है। अनसर्टेनिटी होती है आपके फैसलों की वजह से, रिस्क होता है नेचर की वजह से। गाड़ी चल रही है, पंक्चर हो गया, अब इसमें आपके फैसले का तो जिक्र नहीं है ना, कुदरत ने ही नहीं आपका साथ दिया और टायर पंक्चर हो गया, तो एक रिस्क आ गया। बट अनसर्टेनिटी, ये एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर पूरी ना लें। आप अगर अच्छे इंजीनियर हो, सारे अच्छे फैसले करें, अच्छे इंफॉर्मेशन लें, तो अच्छा फैसला हो जाता है। देखना, डॉक्टर ने टेम्परेचर नोट किए बगैर ही फैसला कर लिया कि इसको बुखार है, इसको ये दवाई दे दो, और बाद में पता चला इस दवाई का रिएक्शन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। क्या आपकी तबीयत 2 दिन और खराब रही, आप काम पर नहीं जा सके, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, क्योंकि डॉक्टर की डिसीजन की वजह से, बिकॉज डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन ही नहीं ली, थर्मामीटर से मेरा टेम्परेचर चेक करने की कोशिश ही नहीं की, तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, जो आपके अपने फैसलों पर मुनहसर होता है। रिस्क बेसिकली नेचर पर डिपेंड करता है। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच अल्टरनेटिव एक्शन कैन बी डिटरमिन। जितने भी आपके अल्टरनेटिव एक्शंस हैं, वो सारे के सारे एक्शन इस प्रोजेक्ट में, जो भी छोटे छोटे एक्टिविटीज लोग कर रहे हैं, आप गोश्त ले रहे हैं, कुछ भैया सब्जी ले रहा है, कोई भैया घर को सजाने के लिए कि जी घर में मेहमान आ रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहा है, तो मुख्तलिफ एक्शंस किए जा रहे हैं। तो रिस्क में आप नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं और अनसर्टेनिटी पर आप अपने फैसलों पर मुनहसर होते हैं, अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके फैसले ना करें। परचेज करना था, एमएस पाइप, एंगल आयरन परचेज करना था, कुछ लोहे की चीज़ें खरीदनी थी, मटेरियल खरीदना था, पार्ट्स खरीदने थे, आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं ली कि पाइप कितना खरीदना था या गियर कितने खरीदने थे, बेल्ट्स कितनी खरीदनी थी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं ली और आप चीज़ें उठा के आ गए। बाद में पता चला इंस्टॉलेशन के दौरान आप 6 बेल्ट चलाए थे या 2-3 गियर लाए थे, मशीन की इंस्टॉलेशन चल रही थी, प्लांट की इंस्टॉलेशन चल रही थी, इंफॉर्मेशन प्रॉपर ना लेने की वजह से आपने कहा ये तो बेल्ट शॉर्ट हो गई हैं या गियर शॉर्ट हो गए हैं या बेरिंग शॉर्ट हो गए हैं, तो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ली और आप प्रॉपर डिसीजन नहीं कर सके। इसी तरह रिस्क एनालिसिस किया जाता है। हमारे पास 10 मिनट है कि रिस्क को किस तरह एनालिसिस किया जाए कि आपका रिस्क ऑलमोस्ट कम हो जाए। जैसे आप कहते हैं जी मैं ये पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा कि मौसम, आजकल वेदर की रिपोर्ट बड़ी अच्छी आ जाती है मोबाइल में, हमारे में इस तरह की एप्लीकेशनें आ चुकी हुई हैं, तो आप फैसला कर लेते हैं मैं मरी ना जाऊं,
मैं ये फंक्शन बाहर ना करूं क्योंकि मौसम ख़राब है, 2 दिनों में बारिश होने वाली है। तो अब आप रिस्क का एनालिसिस कर रहे हैं कि रिस्क कहाँ से कम अज कम हो सकता है। तो इस तरह अच्छे काम करने के लिए आप पहले अपना काम पहले से उसकी रिपोर्ट बना के रख लेते हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी हम पहले एक सर्वे करवा लेते हैं कि जी लेबर अवेलेबल होगी नहीं होगी, मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा नहीं होगा। शॉपकीपर के पास गए, वहां पर सीमेंट लिया, पाइप वाले ने कहा इंशाल्लाह मिल जाएगा। जब आप लेने के लिए गए उस डेट को, तो पता चला जी वो शॉप वाला ही नहीं आया। आज क्यों नहीं आया? कि जी उसके घर, उसके फादर की या उसके घर कोई रिलेटिव की डेथ हो गई, दुकान बंद है। तो आप एनालिसिस करने से पहले आपको आप कहें जी मैंने एक और दुकान भी विजिट की हुई है, मैं वहां से पाइप उठा लूंगा। तो एनालिसिस करने के लिए आपको डिफरेंट डिसीजन करने पड़ते हैं कि अगर ये काम नहीं होगा तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, दूसरी जगह नहीं जाऊंगा तो तीसरी जगह ले लूंगा। तो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी काम आपने करने हैं उसके स्टैंड बाय चीजें जरूर रखनी होती हैं कि आप को ये फलां चीज यहाँ से नहीं मिलेगी तो आप वहां से परचेज कर लेंगे। लेबर अगर नहीं आएगी तो मैं लेबर वहां से मंगवा लूंगा। तो ये एनालिसिस आपने करना है कि कहाँ कहाँ रिस्क अवेलेबल है और उसको मैं कैसे एनालिसिस करूं और अपने काम को किस तरह परफॉर्म कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड रिस्क एनालिसिस। ठीक है जी। जैसे मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था काम की, ये लोग ये काम करेंगे और मुझे मटेरियल यहाँ से नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ इस जगह से उठा लूंगा। लेबर नहीं आएगी तो मैं, मेरे पास एक्स्ट्रा लेबर मौजूद है, मैं उनको रिकॉल कर लूंगा। तो जहाँ जहाँ आपको रिस्क के चांसेस हैं वहाँ आप खुद एनालिसिस करें और कम अज कम रिस्क को कम अज कम करें। रिस्क कम किया जा सकता है, ठीक है ना। नेचर थी कि जी आप इस 2 दिनों में बारिश होने वाली है, आप उस काम उनको करें ही ना कि जी लेबर आया और लेबर आ गई, बारिश शुरू हो गई, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई। तो आपको वेदर रिपोर्ट देख के काम करना चाहिए था। जनरल मैनेजर साफ कह देता है यार आपको पता था बारिशें होनी है, आपने क्यों काम स्टार्ट किया? आपने लेबर की भी हमारी बढ़ा दी, आपने कॉस्ट इंक्रीज कर दी, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। लेबर आई थी उसको बढ़ाई रखा आपने। तो एनालिसिस हर काम को छोटे छोटे स्टेप्स को करना पड़ता है कि जी मैं ये काम करूंगा। तो फिर जैसे आप कहते हैं कि डेली उठ के जी मोटरसाइकिल में पेट्रोल चेक करो, जस्ट यू चेक योर पेट्रोल कि जी देयर इज द पेट्रोल अवेलेबल इन द टैंकी, टायर में हवा फुल है, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस हुई थी, उसकी ट्यूनिंग हुई थी। तो ये ना हो कि जब हमें जरूरत पड़े मोटरसाइकिल की और मोटरसाइकिल ही जवाब दे दे। तो एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन कौन से काम हम बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, हमें उसमें डिस्टरबेंस नहीं आ सकती। इसको कहते हैं रिस्क एनालिसिस, डिफरेंट करना। द फाइनल स्लाइड्स प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जितने भी आप प्रोजेक्ट में देखें, प्रोजेक्ट में आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, प्रोडक्शन करने के दौरान आपने मार्केटिंग भी करनी है, आपने चीज़ें खरीदनी है मार्केट से, आपने लेबर भी आपने मार्केट से उठा के लेके आनी है। ठीक है जी। फिर आपको जो फाइनेंशियल आप पैसा जम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, वो आपको पैसा कहाँ से आएगा, वो ज़्यादा इंक्रीज ना कर जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ ना जाए। मेरी कॉस्ट इंक्रीज कर गई, रिस्क बढ़ गया, कॉस्ट इंक्रीज कर गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। ठीक है जी। स्किल लेबर कहाँ से मिलेगी और क्या क्या उनकी वर्किंग कंडीशंस होंगी। मैं कहूँ जी मैं लेबर ले आया हूँ और उनको कहूँ जी आपने 12 घंटे काम करना है, लेबर कहे नहीं जी हम तो 8 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं करेंगे। तो प्रोजेक्ट की जितनी भी सिलेक्शंस है वो आप सारी ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एवेल्यूएशन करें कि कहाँ कहाँ मेरे प्रोजेक्ट में रिस्क और अनसर्टेनिटी अवेलेबल है। आपने वर्किंग कंडीशन ही नहीं है लेबर को बताई कि जी मैं इस वर्किंग कंडीशन में आपसे काम लूंगा। वर्कर कहे जी आप सर आपने मुझे बुलाने कॉल करने के दौरान नहीं बताया था कि मुझे इतनी गर्मी में काम करना पड़ेगा, सर मैं तो नहीं काम कर सकता। तो आपको प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर्सनल स्किल्स, ट्रेनिंग, डिफरेंट वर्किंग कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एवेल्युएट करना है अपने प्रोजेक्ट को। और रिस्क कम अज कम हो, अनसर्टेनिटी कम अज कम हो, ताकि हमारा प्रोजेक्ट फुलफिल हो। एक बात याद रखें, अगर आपका पहला प्रोजेक्ट लेट हो जाए, बॉस नेक्स्ट टाइम आपको नहीं देगा, वो कहेगा यार इसने पहला प्रोजेक्ट डिले कर दिया था। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअली कोई ऐसा काम शुरू करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं मार्केट में,
लोगों को हायर किया जाता है बाहर से कि जी ये फलां टेक्सटाइल मिल लगी थी या फलां शुगर मिल लगी थी, उस बंदे ने बड़ी अच्छी विद इन द टाइम लगाई थी, तो मार्केट में उसका नाम बढ़ जाता है। तो अगर आप रिस्क को कंसीडर नहीं करेंगे, आप फ्लॉप हो जाएंगे, मार्केट में आपका नाम बदनाम हो जाएगा। आप कहेंगे यार अच्छा मैंने काम शुरू किया था और पहले ही प्रोजेक्ट में डिले होने की वजह से मार्केट में मेरा नाम जो है वो बदनाम हो गया और मैं फ्लॉप हो गया। तो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को फेमस बनाने के लिए मार्केट में, जैसे मैं जिस हिसाब से यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है काम करता हूँ, राव साहब जो मेन बंदे हैं इस कॉलेज के, वो बड़ी इज्जत करते हैं कि जी बंदा बड़ा मेहनती और काम करने वाला है। आप मुझे भी देखते होंगे हर जगह। तो इसी तरह इंडस्ट्री में भी मैं काम किया करता था। लोग, खुदा जानता है कि पिछली इंडस्ट्री से भी मुझे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज भेजे कि यार अब आपकी जगह जितने भी बंदे इन्होंने रखे हैं वो इतने कैपेबल या इतने मेहनती नहीं है जितना आप मेहनत करते। लोग मुझे मैसेज करते थे। उससे पहले भी जब मैं था 2005 से 2010 तक किसी इंडस्ट्री में, वहाँ का मैनेजर, वहाँ का जनरल मैनेजर का क्या मालिक का मुझे डायरेक्ट फ़ोन आया कि यार आप वापस आ जाएं। मेरी अपनी मजबूरियाँ थी जगह छोड़ने की, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता। अगर तो आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, लोग आपको याद रखेंगे, आपको बुलाएंगे। बट अगर आप कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा फ्लॉप कर देंगे तो आप खुद बदनाम होंगे, मार्केट में आपकी डीवैल्यू हो जाएंगे और आप नेक्स्ट टाइम आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो हर काम को कंसीडर करना चाहिए रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने ये आपको बताया। अटेंडेंस सारे लगा दें, अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। बाकी कैमरा नहीं ऑन कर रहे, काफी 2-3 बच्चों ने किया है। जल्दी करें यार, मैंने प्रिंट स्क्रीन लेना है। मेरे कैमरे का थोड़ा इशू है सर। चले बाकी सही 80% तो हो ना। शहजाद रियाज क्या हाल है? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। क्लासें हो रही हैं? जी सर। ठीक है, टाइम खत्म होने लगा है। चैटिंग में कितने बंदे हैं? 16 बंदे हैं और सब ने अटेंडेंस लगा दी। किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई? ओके, सारी बातें समझ आ गई हैं। आसान लेक्चर है, कोई मुश्किल नहीं था आज का। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यस सर, ओके सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।